ओके, सिक्योरिटी बीच इन पार्लियामेंट की बात करें, कौन सा एक्ट लगा दिया उन पे? अनलॉफुल यूएपीए. The short form for it is UAPA. So what is the act that we did? UAPA, as well as sections of the Indian Penal Code. What are the rules of Parliament visitors? As I said, Rule 386 of the procedure, control of business in the Lok Sabha governs the admission, withdrawal, and removal of the visitor. आपको 1 घंटे का time मिलेगा. Referred, what are you known? Visitors are known as strangers. They are only around during the sitting of the house. Is it clear? During what? Sitting of the house. Rule 386 क्या है? Strangers. Rule 387 क्या है? Grants the speaker the power to withdraw strangers. Who can remove? ये आ सकता है. Who can remove the people from the galleries? Speaker. Because speaker is like the head principal of the. Speaker is the principal of the house. The principal guides everything. Rule 387 authorize the speaker, empowers the secretariat officer to remove taken into. अच्छा, जो इसके speaker के वो जो होते हैं, देयर इज नो पुलिस. स्पीकर जो लोग अंदर एमपीस को उठा के लेके जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? देखा भी नहीं जा रहा इस पे. व्हाट इज द टर्म गिवन टू देम? होल्ड ऑन, लिख दिया मैंने. लेट्स सी उस पे आगे. मार्शल. वी कॉल देम मार्शल्स. You took Aadhaar. You went to Lok Sabha, Rajya Sabha. You saw it. You saw. What time did you go? Last year. Last year. Who authorized your entry? They were like, you were not allowed to carry phone. No, who authorized your entry? Who got you the pass? Tribal minister. Who? Okay. So you went through some college? So like there was president invited all the tribal, like from each state there were like 2 people selected. Right. So I went through this. So that is it. You get to stay for 1 hour. Did you see the main hall? Yes, I did. The new one was being constructed. No, the main hall where the where joint session takes place. Yes, I saw Lok Sabha, Rajya Sabha. Did you see the joint session where it takes place? No, sir. Central Assembly, where all the MPs and MLAs used to sit together and they used to have a joint session. That is where the constitution got made. It is a big dome on top. We were taken to the gallery upstairs. Like Lok Sabha was the green mat. Yeah. And Rajya Sabha was is the red mat. That green mat. So this was in attack of the Indian Parliament, 2001 attack on the Indian Parliament was terrorist. Generally, you have to go to an MP. MP issues that card, you get to wear that, and then only for that specific time. Time is also mentioned on that. For how much time and everything. When a group of armed militants attacked the Parliament of India in New Delhi, ये उसी की टाइम का था. The CC and other CC. सबसे important Chief Election Commission article कौन सा आता है? 329 deals with election commission. How many election commissions? पहले थे एक ही था. उसके बाद कितने हो गए? 2 additional. Maximum कितने हो सकते हैं? Right. अभी जो 2 additional है उनको कौन अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमीशन. इसके लिए कमेटी बैठती है जो सेक्रेटेरिएट अपॉइंट करता है. और इसको पहले था, अब कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड एनी मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. 3 member कमेटी बैठेगी जो डिसाइड करेगी कौन बनेगा इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आगे नाम देगा 2 एडिशनल कमिश्नर्स का. इलेक्शन कमीशन को रिमूव कैसे कर सकते हैं? जस्ट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज, विच इज वेरी डिफिकल्ट. सुप्रीम कोर्ट जज कैसे रिमूव करते हैं? 100 members in Lok Sabha, 50 members in Rajya Sabha first gives a application. After once the application, is it clear? फिर क्या होता है? Voting. फिर क्या चाहिए? Absolute majority in both the houses. Is it clear? ऐसे होता है. Key provisions of the bill. Remove कौन करेगा election commission को? Again, as I said, how do we remove the thing? How do we remove the election commission?
वो बट इन केस ऑफ द एडिशनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो ऐसे रिमूव करते हैं, जो एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर है उनको कौन रिमूव कर देता है? सी। So that is also one something that was criticized. Who appoints it? President on the advice of a committee of which three people? Prime Minister, Leader of Opposition, and Leader of Opposition of the largest party, or any person appointed, Cabinet Minister appointed by the Prime Minister. Is it clear or not? What is the tenure of Chief Election Commissioner? 6 or 65, whichever is earlier. In case of State Election Commission, 6 or 62 years. ये पहला क्वेश्चन बच जाता है जो हमारे डिफिकल्ट हो जाता है। एक इस बार आए भी था, एडिशनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन रिमूव करता है? इज इट क्लियर और नॉट? अभी जैसे एवरी डे वी गेट टू सी जजमेंट्स, एज आई सेड रिसेंटली इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन सी हैं जिस पे डिस्कशन हुई? राहुल गांधी वाली जजमेंट कौन सी थी? लिली थॉमस। राहुल गांधी की कौन सी थी? लिली वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि अगर आप 3 साल से ज्यादा कन्विक्टेड हो तो यू विल लूज योर एमपी और एमएलए। उसके बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड मिलेगा, 2 साल और आप चुनाव नहीं लड़ सकते। उस पर डेफेमेशन केस हो गया था, 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट सुना दिया, विच इज द हाईएस्ट फॉर डेफेमेशन केस। वो 3 साल का ब्रैकेट उसमें लग जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कहाँ पे बना है? जम्मू एंड कश्मीर। एक तो राहुल गांधी वाला हो गया, एक और आएगा अभी आपका एसआर बोमाई। ये कौन था? ही इज द फादर ऑफ द अर्लियर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कौन था अभी रिसेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? ही वाज आल्सो बोमाई। इट वाज हिज फादर। हिज गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड जस्ट लाइक दैट। सो इन दैट केस अगेन सुप्रीम कोर्ट वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। सुप्रीम कोर्ट हैड स्पेसिफिकली स्टेटेड कि आप जो फेडरल स्ट्रक्चर्स हैं उनको टच नहीं कर सकते। Is it clear? And governor can only check majority on the floor of the house. फ्लोर ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है? फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ कहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी? असेंबली में। गवर्नर ऐसे पेपर पे प्रूव नहीं करवा सकता। सो ही वाज यूनिलैटरली डिसमिस्ड। ये केस किस में और लगा है? सर बुमाई। अभी रिसेंट जजमेंट भी है, ये उद्धव ठाकरे, वेयर द कोर्ट सेड कि मैं तभी लगा सकता था अगर तूने रिजाइन ना किया होता। He had resigned. So court said I cannot do anything. Is it clear or not? एंटी डिफेक्शन की अभी रिसेंटली बात करते हैं। एंटी डिफेक्शन कौन से लॉ में ऐड हुआ है? 10th शेड्यूल। अगर वो कहते हैं 2/3 पार्टी के अंदर स्प्लिट हो जाए और वो पार्टी कोई और पार्टी में ज्वाइन हो जाए तो इसको 10th शेड्यूल में नहीं माना जाएगा। एक नाथ शिंदे स्प्लिट नहीं हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। बट अब वही आ गया, क्या हुआ? स्पीकर। एंटी डिफेक्शन पे कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। स्पीकर पार्टी के बारे में नहीं बता सकता। cannot tell. Is it clear? Speaker cannot tell about any party. Here clear है कि नहीं? स्पीकर किसके बारे में बता सकता है? सिर्फ एंटी डिफेक्शन, पार्टी के बारे में नहीं। स्पीकर ने जो जजमेंट दी वो पार्टी से रिलेट दे दिया, और एंटी डिफेक्शन किस पे नहीं लगाया? एक नाथ शिंदे पे। सो रिसेंटली ये चल रहा है बिकॉज Uddhav Thackeray had gone to the court. Court said, sorry, SR Bomai's judgment, you were absolutely right. The floor of the test the test should have been done on the floor. But unfortunately, you resigned. So I cannot go back and change your resignation. Since you've resigned, we agree that you've resigned. Now we tell the speaker whether the people that who were in your party उन पे एंटी डिफेक्शन लगेगा कि नहीं। तो स्पीकर को जजमेंट देनी है। स्पीकर ऑफ कोर्स अपनी पार्टी का होता है, तो उसने बोल दिया कि नहीं नहीं, ये एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं आते बिकॉज ये अपनी पार्टी है। तो पार्टी पर कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन। तो वो ओवर रूल कर रहा है अपने, ये चीज थी। The Supreme Court unanimously upheld the abrogation of Article 370. Article 370 लगाया किसने था? प्रेसिडेंट ऑर्डर पे लगा है ये आर्टिकल
370 और 35 ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स थे, ना कि उनकी असेंबली या कुछ। ये टेम्परेरी पर्च। The center and also recommended setting up a Truth and Reconciliation Commission look into the alleged violation of human rights by both state and non-state actors in Jammu and Kashmir. Who is the governor? भानु बताएगा of Jammu and Kashmir. हाँ, very good. मनोज सिन्हा। आज बड़ी अनाउंसमेंट की है परसों मिस्टर मनोज सिन्हा ने। 97,000 jobs they've claimed, they've given. पेपर में भी आया था। क्या हुआ? ये देख लो, कल पेपर में भी आया। नो, ये देख लो 94,000। एक दिन में 94,680 जॉब्स प्रोवाइड कर दी। This was the हाँ okay. I'm just saying it came in the paper, so I'm just telling what came in the paper. Okay. Truth and Reconciliation Commission is known as Truth and Justice Commission or simply a Truth Commission. इसमें होता क्या है? It's an official mechanism not just to acknowledge but also reveal the wrongdoings of state and non-state actors. State actors क्या होता है? पुलिस वगैरह। Non-state actors क्या हो गया? टेररिस्ट और ये सब जो बाहर से आते हैं। The Truth Commission is one that focused on the past rather than the ongoing events. It investigates a pattern of events that took place over a period of time, which past से related है. The commission engages directly and broadly with affected population, gathering information on their experiences. It's a temporary body with the aim of concluding the final report. Commission is officially authorized and empowered by the state under review. अब आर्टिकल 370 की बात करें। आर्टिकल 370 कब लगा था? So it was when it was a temporary provision that had come through. Is it clear? It was when Hari Singh decided to join India. He wanted it to be an autonomous state, but it could not happen because the Pathans had attacked. Is it clear? So then he decided, what is that known as? Instrument of accession. The court said, once you've signed the instrument of accession, you have given away your sovereignty. And that sovereignty is of India. You will stay under India. You cannot become independent. या फिर तुम बोलोगे मेरा constitution अलग हो, मेरा वो सब अलग हो, वो नहीं हो सकता. Once you sign the instrument of accession. Amrit technology. Amrit technology किसका है? Removal of arsenic metal removal by Indian technology. कौन सा? जल जीवन मिशन में क्या आता है? Arsenic and metal removal. हर घर नल। और हमने क्या बोल दिया? हर घर नल। और क्या था? सिलेंडर नहीं, जल जीवन में सिलेंडर का क्या करेंगे? हाँ, 75 districts to be identified for as natural aquifers. Yes, पर वो वही 75 अमृत आजादी का अमृत महोत्सव में 75 इयर्स हो चुके हैं, तो आपने 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 प्लेसेस आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे आपने नेचुरल एक्विफायर्स। एक्विफायर्स क्या होता है? जहाँ पे पानी स्टोर हो जाए जिसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर में जाए। The technology was developed by the Indian Institute of Technology, Amrit क्या? Arsenic and metal removal by Indian technology. It is designed by removal of arsenic and metal ions from water, addressing water quality issues. The technology सिर्फ पूछा जाएगा क्या यूज करती है? नैनो स्केल आयरन हाइड्रोक्साइड। क्या यूज करते हैं? नैनो स्केल। नैनो स्केल मीन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इज इट क्लियर?
iron hydroxide, which removes arsenic when water is passing through it. Amrit is applicable for domestic and normal immovable water purification. The technology aligns with broader goals of Jal Jeevan mission to provide safe and portable tap water to rural household. इसमें क्या आ गया? अमृत भी है, हर घर जल, और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में natural aquifers, because पानी का water क्या हो रहा है? नीचे. Arsenic is a natural component of the Earth's crust and widely distributed through the environment and air. It is highly toxic and is inorganic. Long-term exposure to drinking water and food can cause cancer and skin lesions. जल जीवन मिशन क्या था? 2019 में लॉन्च किया था. सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग. कितना पानी मिलना चाहिए हर एक आदमी को? 75 लीटर्स. 55 लीटर, सॉरी, 75 लीटर्स पर लीटर. 75 इज फॉर दैट कुएं जो मैं बोल. 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे. इतना उसको अवेलेबल होना चाहिए पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए. कई हैं जो सेव करके रख रहे हैं वाटर. मैं बताना नहीं चाहता कौन है. वाटर ही सेव कर रहे हैं. वो 5 लीटर नहीं यूज कर पा रहे. 55 तो छोड़ो. Okay, is it clear? Through functional household tap connections. The government also launched the Jal Jeevan Mission Urban, which has been designed to provide universal coverage of water supply through functional taps in all 4378 statutory towns. 16.8 था, अभी 71% हो गया. इस पे तो इतना हो चुका है. ये कल आया था इस पे. Okay. Merit over reservation and appointment of law officers. जनरली आपका कौन सा 2 जजमेंट्स आ जाएंगी इसमें? पहली जजमेंट आ जाएगी आपकी इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इंदिरा सानी केस में इन्होंने बोला, कोर्ट ने बोला कि हाँ रिजर्वेशंस रहेंगी. सेकेंड, क्रीमी लेयर सिर्फ किसके लिए रहेगा? ओबीसी. रिजर्वेशन कितनी रहेंगी? 50% से ऊपर नहीं हो सकते. अब वो भी चेंज हो गया, कितनी हो गई है? 60. एंड प्रमोशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन. तो राजीव गांधी ने चेंज कर दिया आर्टिकल 16(4) में संशोधन करके. उसने बोला नहीं, रिजर्वेशन प्रमोशन के बेस पे होगी, सॉरी, प्रमोशन रिजर्वेशन के बेस पे होगी. फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया नागराज पे. उसने बोला कि 2 चीजों पे आप रिजर्वेशन कर सकते हो. फर्स्ट, लोएस्ट कास्ट. सेकेंड, ये क्या करने चाहिए? दे शुड इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द पास्ट अ लॉ providing for reservation based on caste in Bihar. He was the first one to make a law for reservation based on caste. So this is going to be really important. Who has been given this thing? Kapuri Thakur, former Bihar's chief minister, who recent और ये पक्का आएगा. A former chief minister of Bihar. अब why he is the one who introduced the OBCs. इसके बाद बना है आपका मंडल कमीशन. इसके बाद क्या बना है? मंडल कमीशन. इससे पहले मंडल कमीशन नहीं था. तो इसके बाद क्या बना? मंडल कमीशन. इज इट क्लियर और नॉट? सो हु इज द वन? अब मैं सबको कोरिलेट कर रहा हूँ. पूरी आया बिकॉज हमारे पास वो रिजर्वेशन आया. रिजर्वेशन का बेस वो सेटअप इन बिहार. बिहार में एनी ओके, एज आई सेड, इंडिया में 2 जगह से पॉलिटिक्स होते हैं. एक तो रिलीजन बेस्ड होता है, कास्ट बेस्ड होता है. रिलीजन बेस्ड इज ऑलरेडी बीन डन. कास्ट बेस्ड कौन से कर रहे हैं? ये कांग्रेस, और ये कांग्रेस से ज्यादा तो नीतीश. उसने क्या कर दिया? उसने रिजर्वेशंस के लिए क्या किया? नॉट रिजर्वेशन, उसने कास्ट सर्वे करा कि कौन सी कास्ट कहाँ पे है. उससे पता लगा ओबीसी और हैं, दलित, और ही गेव द टर्म महादलित. सॉरी, ओबीसी में भी फर्दर बैकवर्ड क्लासेस. एक तो होता है बैकवर्ड क्लासेस, एक होता है फर्दर बैकवर्ड क्लासेस. So he is the one, and that is because, of course, elections are coming. You cannot look anti-caste. You cannot look
कास्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स भी तो खेलना ही है. So that's one of the reasons why he's been given the Bharat रखना. इज इट क्लियर और नॉट? ओके. अब नागराज में कोर्ट ने बोला दो चीजें होनी चाहिए. पहले तो आपको ये कास्ट होनी चाहिए लोएस्ट, मतलब कि कास्ट में भी सबसे पिछड़ी होनी चाहिए. इट शुड बी द लोएस्ट अमंग्स द लोएस्ट. सेकंड क्या बोला? इट शुड इंप्रूव द एफिशिएंसी. अब जब कास्ट सर्वे नहीं हुआ तो अब लोएस्ट अमंग लोएस्ट तो ढूंढ ही नहीं पाओगे. उस बेसिस में रिजर्वेशन हो ही नहीं पा रहे प्रमोशन के बेसिस पे. इज दैट क्लियर और नॉट? कौन सी की बात कर रहे हैं हम? मेरिट ओवर रिजर्वेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर्स. पहले तो हम रिजर्वेशन की बात करें. किसकी बात कर रहे हैं? रिजर्वेशन. किसके रिजर्वेशन की? कौन से रिजर्वेशन की? सीपी जोशी नहीं, शेड्यूल कास्ट. इज इट क्लियर? मद्रास हाई कोर्ट ने लॉ ऑफिसर्स कौन है आपके? एडवोकेट जनरल और ये सब. कौन किसकी बात कर रहे हैं हम? एडवोकेट जनरल. इज इट क्लियर? अब उसमें किसी ने पिटिशन फाइल कर दिया कि एडवोकेट जनरल तो है ही नहीं, तो हाई कोर्ट ने बोला सॉरी वी कैन नॉट हैव एडवोकेट जनरल एज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. इज इट क्लियर? जस्ट इन जनरल चेंज. ये आ गया रूल्स एंड जजमेंट्स. मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया. इंदिरा सानी केस. इज इट क्लियर और नॉट? और ये सब कौन सी अमेंडमेंट थी? 81st अमेंडमेंट में अंडर दिस 2001 इंसर्टेड दिस enables the state to unfilled vacancies which are reserved. अच्छा बाई चांस अगर SC ST की सीट 50% रिजर्व ना हो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे. ये कौन सी अमेंडमेंट में ऐड किया? 81st 2000 अंडर आर्टिकल 16 4. क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? NMCG नेशनल क्लीन मिशन फॉर क्लीन गंगा. गंगा को क्या बोला है? दो रिवर्स को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिविंग रिवर्स बोला है. गंगा एंड हैव बीन कॉल्ड लिविंग रिवर्स. किसकी बात कर रहे हैं? गंगा और यमुना की. नामी गंगे प्रोजेक्ट हुआ, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट हुआ. नामी गंगे को चेंज करके क्या कर दिया है? नामी गंगे था कि भाई गंगा को साफ कर देंगे, हुआ नहीं. उसके बाद आपने क्या कर दिया? नामी गंगे की जगह कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया? यू आर यूजिंग गंगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वेज. यू आर यूजिंग गंगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली, कि जितना हो सके हम Indian or outside इंडिया Indian origin or इंडियन. MP Ganga Village. हाँ, MP Ganga. MV गंगा विलास. सो वेयर इज इट फ्रॉम? ये भी दिखा है. तो दिस इज हाउ यू आर doing it. It goes to Bangladesh also. Is it clear or not? Which is that? The Ganga cruise. When I say it about it. Okay. What? A cruise on Ganga. चलता है. Otherwise, it's Costa Serena. Costa Serena. Like it's out. But हाँ. I'm talking about inside India. So what is happening? It's a cruise. I think so. It's rate should be anything around 30,000. It's expensive a day. It starts from Varanasi. It also goes through Bangladesh. Is it clear? That is what we have. That is what the Prime Minister launched. This is where you are using Ganga in terms of economic purpose. धार्मिक स्थल नहीं है ये, सिर्फ गंगा पे क्रूज है. जस्ट लाइक इन द सेंस टू गो. ग्लोबल रिवर इनिशिएटिव किसका था? कौन सी रिवर पे था? मिसिसिपी. वहां से हम सीख रहे हैं कि भाई अच्छा वो रिवर्स गंदी हुई उनको कैसे ठीक किया और हम अपनी रिवर्स को कैसे ठीक कर सकते हैं. रिवर पोल्यूशन किससे होता है? इंडिकेट. यार साइंस के तो आप हो. Anyone? What is BOD in rivers? Yeah. What is BOD? Biochemical oxygen demand. This is the one that I was talking about. If you find it from BOD.
कि भाई वो क्या है, आई डिड नॉट नो द फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म, बायो ऑक्सीजन डिस्टल, इज इट क्लियर? वो कितना है, अगर कुछ ज्यादा हो जाता है तो क्या व्हाट हैपेंस, द algae टेंड्स टू ग्रो, व्हाट हैपेंस फ्री में, ये कहाँ पे बीओडी बहुत ज्यादा हो गया है, जहाँ पे algae वगैरह फैल जाता है, जब हम डिस्चार्ज कर देते हैं तो ऊपर नीचे तक पानी, ऊपर क्या हो जाता है algae डिपॉजिट हो जाता है, नीचे तक पानी में सनलाइट नहीं आती, सो रिवर the fishes and all die. Is it clear? This is what we have in terms of BOD. ये चीज हम इम्प्रूव करने होते हैं। एल्गे ब्लूम तो बीओडी से तो होता है, यही तो हमने करना है। एल्गे ब्लूम, हाँ, तो किसी को क्या पता, पानी तो गिरते नहीं है, कहीं खुद पे ना जम जाए। ओके, रिवर सिटी अलायंस, इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। कौन सा? रिवर सिटी अलायंस। जल शक्ति का क्या है? मेन हर, और सेकंड अमृत। इलेक्ट्रिक बसेस को प्रमोट कौन सा वो कर रही है गवर्नमेंट स्कीम? ये बहुत सिंपल है, ये तो पक्का आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रिक बसेस आपने देखी भी होंगी, दैट आई जस्ट वांट टू सी योर ऑब्जर्वेशन। उनके पीछे लिखा होता है, जैसे पुरानी बसेस के पीछे लिखा होता था JNNURM, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन। आजकल की बसेस में क्या लिखा होता है? PM। जवाहरलाल नेहरू था तो यहाँ पे मोदी है दोबारा से। फेम, what is the word for it? Fame. That is faster adoption, adoption, manufacturing of electric vehicles, electric vehicles. That is what we have in them. किस स्कीम के अंडर, और बुक सारी इलेक्ट्रिक बसेस के पीछे लिखा हुआ है फेम, या साइड पे लिखा होता है अंडर फेम। JNNURM था जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन। तब आपके लो लाइन बसेस नहीं, जो रेड और ग्रीन आपको दिखती हैं, वो आई थी। उनका पहले ऊपर बसेस का वो ऊपर होता था, इन द सेंस इन्हें इधर तक होता था, चढ़ने के लिए वो चढ़ने के लिए एक वो लग जाती थी पौड़ी सी। अब इन्होंने फिर वो स्टार्ट किया, अंडर गेटिंग न्यूअर बसेस, बेटर फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग। अब कौन से के अंडर लेके आ रहे हैं? फेम। जस्ट इन जनरल आपके अराउंड ऑब्जर्वेशन है, ये सब पता होना चाहिए। व्हाट इज दैट? फेम। नाउ व्हेन आई से अबाउट इट, व्हाट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ दिस, in the river cities, a joint initiative of Ministry of Jal Shakti and Housing and Urban Affairs, with a vision to connect river cities and focus on sustainable river-centric development. The alliance focuses on three broad themes: networking, capacity building, and technical. Beginning with 30 members in this, the alliance has expanded to 100, and basically इसमें क्या है कि आपस में exchange करना ideas और बताना. Which cities declared the cleanest city of India? Why? सबसे पहले तो they've been able to, what is the most important thing that we talk about? The amount of waste you produce, you're able to recycle, restore it, recycle it. You're able to recycle it and use it. So that's why what they started was using blue and green dustbin. ये क्या कहता? Blue green? Is it clear? No fines. Nobody can throw on the road 500 rupees fine. They've been very strict. And the people have part, huh? Three type of dustbin introduced. Yellow and red are for different. Red is for any sanitary. Yellow is for, I guess, toxic. It is used in case of your जो glass वाला medical waste के लिए use किया। हमारे यहाँ पे तो yes, green or blue. Yes, that's for basically any medical waste. So blue and green. That है खास। ये डस्टबिन नहीं, चंडीगढ़ में तो उनकी ये भी जैसे मिट्टी का पहाड़ बन गया था दिल्ली वाला, वो अब आधे साइज का हो गया है। इधर नहीं है, उस इधर है जो छप्पर
छप्पड़ चिड़ी की साइड से जाओगे उधर किधर, हाँ तो वो है, चंडीगढ़ में भी बन गया था ऑपोजिट दिस, ऑलमोस्ट हाफ साइज हो गया, बिकॉज रिसाइकल प्लांट स्टार्ट कर दिया है, फाइन स्टार्ट कर दिया लोगों पे। आप रेड अगर आप ब्लू अग्री नहीं करते प्रॉपरली, 200 रुपीज का फाइन आ जाता है, फोटो खींच के भेजते हैं। Is it clear? So what we are doing is this. Second of all, वो तो क्लीनिनेस ऑफ रोड्स वगैरह तो इट्स डिफरेंट। सबसे पहले क्या है, रिसाइकलिंग। अब मैं वही बता रहा हूँ, सब आपके सामने है। फेम स्कीम आ जाएगा। फेम क्या है, इलेक्ट्रिक बसेस को प्रमोट करना, फास्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज एंड hybrids. Is it clear? That is what we are trying to do under the FAME scheme. Very interestingly, under FAME scheme, electric vehicles may no registration charges. Hybrid vehicles, no registration charges. If you buy a car of 15 lakhs, registration charge for a normal car would be 10% or 1%, say for example. In case of this, there is no registration charge. और नंबर प्लेट सेवन वही रजिस्ट्रेशन चार्ज पर नंबर प्लेट से 8%, वैसे इसका कुछ नहीं होता। 500 1000 रुपए में they do it. So what is the purpose of it? Fame. अब नॉर्डिक कंट्रीज ने क्या किया फेम को इंट्रोड्यूस करने, उन्होंने इवन दे वेंट 10 steps ahead. In all the Nordic countries, 70% of the people own Tesla. They said they made petrol and diesel very expensive. They said, and they made the loans on electric vehicles half the rate. So they pushed people to shift it through for the EVs. Okay. The same way, अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला भाई टैक्स, यहाँ पे टैक्स कम नहीं हुआ है, बट ओनली थिंग आपका बैटरी पे भी टैक्स पड़ रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी टैक्स पड़ रहा है। बस इन्होंने क्या कर दिया, एक सोर्स ऑफ टैक्स टुवर्ड्स द एंड कम कर दिया। Is it clear? For this also, GST is also less on these vehicles. EV vehicle GST is also less. अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है। For reducing the manufacturing costs, सबसे इम्पोर्टेंट है, वी आर ट्राइंग टू मेक लिथियम आयन बैटरीज होती है, उसकी जगह हम क्या ट्राई कर रहे हैं, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन बैटरीज, विच वी आर वर्किंग ऑन। हाँ क्या बात, यस, साइलेंट व्हीकल्स। So वही है कि that is it. अब like for in Delhi you cannot use a vehicle beyond 10 years, so that's what they're saying. Other initiatives हमने बात किया, गंगा एक्शन प्लान, ये सब पुराने वाले हैं। नामी गंगा था, अभी क्या है, गंगा एंड इकोनॉमिक आउटलुक फॉर गंगा, ये चला हुआ है, where they're trying to use गंगा in a better way. इकोनॉमिक आउटलुक कैसे कि गंगा साफ दिखेगी तो ऑटोमेटिकली मोर पीपल आर गोइंग टू कम एंड एवरीथिंग। जैसे योगी जी ने बोल दिया मैंने कचरा फेंकवाना बंद करा दिया है गंगा में, अब वो सेल्फ बना दिया है। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। इज इट क्लियर? ओके। व्हाट आर द अदर इनिशिएटिव ऑफ रिवर गंगा एक्शन प्लान, द नेशनल रिवर कन्वर्सेशन, क्लीन गंगा फंड, सुप्रीम कोर्ट ऑन रेवोकेशन। रेवोकेशन मीन्स हटाने के लिए ऑफ आर्टिकल 370। हटा कैसे था, 6 साल बाद इलेक्शन होते थे, तो क्या हुआ कि बीजेपी ने सपोर्ट ले लिया वापस, किससे, पीडीपी से। गवर्नर रूल लग गया, गवर्नर ने क्या कर दिया, बिफोर इवन आस्किंग एनीबडी ही वेंट सेइंग दैट द असेंबली इज इन अबेयंस। उसके बाद द president rule came through. When the president rule came through, article 370 was introduced, whereby they wanted to abrogate article 370 and article 35A. Supreme Court has specifically spoken that article 35A was only pushed by the presidential order, because of which the constituent assembly, जो वहां का पार्लियामेंट बना, जैसे भारत का संविधान लिखा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, वैसी जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई जिसने जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इज इट क्लियर और नॉट? अकॉर्डिंग टू देम द सोवरेनिटी ऑफ एवरीथिंग इज देयर एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, और ये सब में बाकी चीजों में सोवरेनिटी किसकी रहेगी, जम्मू एंड कश्मीर असेंबली की। And merger agreement was not necessary to surrender its sovereignty, ये बोला गया। Where Jammu list part 3 with no modification. Section 3 Jammu expressly state the state of Jammu Kashmir shall be an integral part of the Union of India. Union of India का मतलब क्या है, कोई भी स्टेट इंडिया से जुड़ी है विदाउट एनी अग्रीमेंट।
Canada can divide itself into smaller portions. Canada can also ask for freedom because there's a union. United States of America. They can divide themselves without asking the union. But in India, no state can divide itself without asking the union. अब इसके लिए I'll just go to the polity में एक simple सी चीज दिखाता हूँ. Article 1 से related है. यूनियन ऑफ स्टेट्स तो है ही है. एक और चीज दिखाना चाहता हूँ. India is an indestructible union of states. In other words, the union government can alter the boundaries of the state in era. The parliament or president is not bound by the views of legislation and may accept or reject even if the views were received. This is why India is described by many as indestructible union of destructible. कोई स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकती, बट इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को तोड़ सकती है. जस्ट लाइक दे डिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर, डिवाइडेड मोर स्टेट्स. In other words, the union government can alter the boundaries of state in contrary to the United States of America, where the boundary of states cannot be altered by the federal government without the consent of the states. Hence, USA is described an indestructible union of indestructible states. कोई भी स्टेट टूट नहीं सकती. Is it clear or not? ये चीज मैं बताना चाहता था. इंडिया इज अ indestructible union of destructible states. कईयों ने क्या इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि अमेरिका से कोई भी स्टेट अलग हो सकती है. वो नहीं है. It's also United States of America. Only thing that they can do is they ask for more rights. They can divide their state into two equal portions. They can do other things, but they cannot divide away from America. States have a lot of rights like separate taxes, own laws, but they cannot move away out of America. They cannot break away. कईयों ने बोला है अच्छा अमेरिका में स्टेट्स अलग मांग सकते हैं. नहीं. America will remain America. How many states did America have when they bombed Japan? Bombed Japan. 49. And Oppenheimer, I was reading through it because when Oppenheimer they like made the bomb, there were 49 states, not 50 states. So somebody, yeah, so somebody was not Alaska. I think so came in 1911. They bought it from Russia. They are now asking it back. They were making posters, but it's not. America's not going to sell it back because it gets them control over the Arctic Ocean. Russia was stupid enough to sell it. So Alaska was actually bought from Russia.